करन लगे हाँ पोटेंशियल दे विच सब तो पहला पोटेंशियल हुंदा की है वर्क डन may be defined as it may be defined as work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point किवें देखो जरा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆ p ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ p ਹੈ ਆ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ p ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ Q0 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ dx ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਲ r ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ x ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਚਾਰਜ dq ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ dw ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ fdr ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ p ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ p ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ p ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ p ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੀਨਸ r ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ f ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਊਗਾ k q1 q2 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ dx ਫਰੋਮ r ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ dw ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ k q0 dx ਓਵਰ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਫਰੋਮ r ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ k q0 x ਦੀ -2 + 1 by -2 + 1 from r to infinity इंटीग्रेशन करती है इधर भी इंटीग्रेशन करती तो w आ जाएगा ये बन गया k q0 -1 by x from r to infinity पहला अपर लिमिट पुट करी दी हुंदी है ये बन गया -1 by infinity + 1 by r तो साडे कोले वर्क डन आ जाऊगा k q0 over r ਹੁਣ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ kq ਓਵਰ r ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਅਪਨ ਚਾਰਜ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਲ ਚ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੂਲਮਾਂ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਟ अगर 1 जाउल वर्क किया जाए 1 कूलम चार्ज ਨੂੰ एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक लेके आने ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ पोटेंशियल 1 वोल्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਊਲ ਹੈ ਉਹ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਅਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹ 3 * 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਵੋਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1/300 ਸਟੈਟ ਵੋਲਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸਟੈਟ ਵੋਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 300 ਵੋਲਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ Q0 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ dw ਆ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਈ dw - Q0 into EdR from ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ r ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ - EdR ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ from r ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਏ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ r ਲੈ ਗਿਆ r ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਚੱਲੀਏ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ r ਤੱਕ ਆਈਏ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ fdr ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ Q0 EdR ਫਰਮ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ r ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ r ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ ਇਹ dw Q0 ਬਣ ਗਿਆ dv -infinity to r EdR ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ dw ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ Q0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ dv ਵਰਕ ਅਪਨ ਚਾਰਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ dv ਸਮਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -EdR ਤਾਂ e ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ -dv/dr ਤਾਂ ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ dv/dr ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨ ਡਾਈਪੋਲ
पोटेंशियल ड्यू टू, दूसरा ये अगला आर्टिकल है, ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल दे करके कितना पोटेंशियल होएगा, 2 नंबर पार्ट है। पहले नंबर पार्ट ਅਸੀਂ पोटेंशियल ਕੱਢਿਆ ਸੀ k क्यूब बाई r। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ डाइपोल है। डाइपोल ਹੁੰਦਾ ਹੈ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस अपार्ट इन 2l सेपरेशन ਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ p ਦੇ ਉੱਤੇ पोटेंशियल ਕੱਢਣਾ है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ r1 है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ r2 है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90 है, आ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90 है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है जी, इनू कह लो भी ओरिजिन है, इनू कह लो ये पॉइंट ए है, सपोज कर लो ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये पॉइंट डी है। तो तुसी देखो पोटेंशियल एट पी ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ माइनस ऑफ के क्यू ओवर r1 ਤੇ प्लस के क्यू ओवर r2। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ r1 ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। r1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ l ਲੈਂਥ ਹੈ, ਆ 90 ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ OD ਇਹ l ਹੈ ओवर l बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा cos थीटा। तो OD बन गया इट इज इक्वल टू L cos थीटा। आई OC बटा L ये बन गया cos ऑफ थीटा। OC बटा L ये बन गया cos थीटा। OC बन गया इज इक्वल टू L cos थीटा। R1 कितना बन गया, R है पूरे तक, OP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ R है, तो ये बन गया R प्लस L cos ऑफ थीटा। R2 बन गया R माइनस L cos ऑफ थीटा। इन्होंने चक्या ये पुट कर, ये बन गया पोटेंशियल एट P बन गया K क्यू बाहर आ गया 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R1। ये बन गया K क्यू, R2 कितना कटे R माइनस L cos ऑफ थीटा, ते ये कटे माइनस R प्लस L cos ऑफ थीटा। ये बन गया के क्यू ओवर आर दा स्क्वायर माइनस एल दा स्क्वायर cos स्क्वायर आर प्लस एल cos थीटा। ते ये बन गया आर प्लस एल cos ऑफ थीटा माइनस आर माइनस एल cos ऑफ थीटा ओवर आर दा स्क्वायर माइनस एल दा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस प्लस प्लस दा और माइनस दा इकट्ठा गया, ये आ गया पोटेंशियल एट P बन गया के क्यू इंटू 2l cos ऑफ थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल दा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ होंदा P दे बराबर बन गया के पी cos ऑफ थीटा ओवर आर दा स्क्वायर माइनस एल दा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर थोड़ा लाइन एक्सियल लाइन है, फॉर एक्सियल लाइन दे उत्ते की होंदा थीटा 0 होंदा, cos 0 1 हो गया, तो पोटेंशियल हो जाऊगा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एक्सियल लाइन ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ पोटेंशियल आ जाऊगा kp ओवर r ਦਾ स्क्वायर माइनस l ਦਾ स्क्वायर। अगर थोड़ी लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ थीटा होगा 90, पोटेंशियल आ जाऊगा 0 क्योंकि cos 90 0 ਹੁੰਦਾ। अगर थोड़ा r ग्रेटर देन l है, फॉर r ग्रेटर देन फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल की होगा जो r है ग्रेटर देन l है, तो थोड़े को ये बन जाऊगा, यही एक्सप्रेशन थोड़े को बन जाऊगा b इज इक्वल टू kp cos ऑफ थीटा ओवर r दा स्क्वायर फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। पोटेंशियल है जो वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िया सी वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब सी, पोटेंशियल वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। ये सीगा पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल दा आर्टिकल। तीसरा है पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस, ड्यू टू मैनी चार्जेस। सपोज कर लो साडे आह एक स्क्वायर है, पूरे चार्ज प्लस क्यूब है, पूरे प्लस क्यूब है, पूरे माइनस क्यूब है, पूरे माइनस क्यूब है। असी ओ पॉइंट पे पोटेंशियल कढना है। पोटेंशियल एट ओ की होगा, एक ए रेट r है, ए r है, r है, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ k क्यूब बाय r, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ k क्यूब बाय r, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ माइनस k क्यूब बाय r, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ कितना होगा माइनस k क्यूब बाय r। सारे हम कैंसिल कर दो, तो नेट पोटेंशियल एट o की होगा 0।
ਇਹ ਸੀ potential due to many charges। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ potential ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। और डिमेंशन कटने के बड़े आसान है, यूनिट्स वोल्ट होंगे है, वर्क अपॉन चार्ज करो, वर्क के डिमेंशन तुहानू पता है ml2t-2 वर्क अपॉन चार्ज जे पोटेंशियल के डिमेंशन कटने पै जाए, ये हो गए ml2t-2 चार्ज के की हो गए at, तो ये बन जाएगा a ml2t-3a-1 ये जरा सीधा साडा तीसरा सीगा। ये चलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग कितना होता है, on this ring is made up of large number of element dq each is at a distance capital R from the center, the potential हो जाएगा k dq over capital R तो बन जाएगा तो एक स्मॉल चार्ज दे करके आऊगा dv, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, dv ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ is equal to k by r into dq ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ, dq कितों 0 तो लैके कैपिटल Q तक तक बन जाएगा kq upon r। तो पोटेंशियल जिहड़ा है एक रिंग दे करके जिहड़ा होगा वो kq by r होगा। जे रिंग दा एक्सिस दे उत्ते कढना होवे असि इत्थे एक छोटा पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, तो एक होगा एक्सिस आपां इत्थे p पॉइंट दे उत्ते कढना है तो बन इस चार्ज स्मॉल dq करके इत्थे कितना पोटेंशियल है बन जाएगा k dq ओवर r दा स्क्वायर प्लस x दा स्क्वायर रूट। नो ये जी रिंग है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट dq बहुत सारे है तो असं इसका इंटैग्रल कर देंगे dv k ओवर r दा स्क्वायर प्लस x दा स्क्वायर रूट इंटैग्रल ऑफ dq, तो ये बन गया v इज इक्वल टू k 0 तो लेके q तक q ओवर r दा स्क्वायर प्लस x दा स्क्वायर रूट। हुण एट द सेंटर ऑफ रिंग x कितना होगा 0, मतलब पोटेंशियल कितना होगा k q ओवर r। और जदों तुहाडी जिहड़ी रिंग x है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होवे, x ग्रेटर देन r होवे इस तो जिहड़ा ये चार्ज है दिस विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, दा पोटेंशियल कितना बन जाएगा k q ओवर x। आ जाएगा की कैलकुलेशन ते ਹੁਣ ਇੱਕ ਰॉड ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ dx, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ dx ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰॉड ਦੇ l ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ q ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਚਾਰਜ ਬਟਾ ਲੈਂਥ, dx ਰॉड ਦੇ ਲੈਂਥ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ q ਬਟਾ l into dx। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢੋਗੇ ਹੋਊਗਾ k dq upon x, पर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ k ਬਟਾ x ਚਾਰਜ ਬਟਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ dx, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ k q ਬਟਾ l ਇਨਟੂ dx ਬਟਾ x ਫਰੋਮ a ਤੋਂ a ਪਲਸ l a dv। ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ b k q ਓਵਰ l log of x from a ਤੋਂ a plus l, ਤਾਂ ਇਹ b ਬਣ ਜਾਏਗਾ is equal to k q over l log of a plus l। पहला अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करो तो आंसर पोटेंशियल आ जाएगा k q over l a plus l बटा a। सेवंथ देखो हुण ये जिहड़े साडे कोले बहुत सारे चार्ज ने dq एट फ्रॉम द सेंटर इस पॉइंट तो रिंग दे, तां लैम्बडा हुंदी है लीनियर चार्ज डेंसिटी ते चार्ज पर यूनिट लेंथ की बन गया इक्वल टू लैम्बडा, ते एल जिहड़ी हैगी है हाफ रिंग करके होगा पाई आर इनटू लैम्बडा, तो ये जिहड़ा हो जाऊगा तो साडा पोटेंशियल हो जू एट पी के डी क्यू ओवर एक्स, ठीक है। पर इस जिहड़ी रिंग है लार्ज नंबर ऑफ डी क्यूज तो मिलके बनी हुई है, तो ये हो जाऊगा डीवी का इंटेग्रेट करोगे, डीवी का इंटेग्रल कर लिया इधरों के बटा एक्स डी क्यू का इंटेग्रल कर लिया, तो ये बन गया बी इज इक्वल टू के क्यू ओवर एक्स। 0 तो लेके कैपिटल क्यू तक कीता और कैपिटल क्यू लिखता, क्यू है जेड़ा वो लैम्बडा पाई आर दे बराबर है, आर डिस्टेंस है फ्रॉम द जिन्ने यहां डिस्टेंस ने दे आर एक्स फ्रॉम द सेंटर, ता बी साडे कोले बन जाऊगा के क्यू बन गया लैम्बडा पाई आर दी थां ते एक्स लिखता है, जे उरे आर लाओगे तो उरे भी आर लिखोगे, उरे भी आर आऊगा, इत्थे भी आर आऊगा, तो ये बन जाऊगा लैम्बडा पाई आर ओवर आर कैंसल, तो बी बन जाऊगा के लैम्बडा पाई। हुण आए थे आ
ये देखो ये सर्कुलर आर्क का केस है। ਅਸੀਂ ਆ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ dq, ਇਹਦੇ ਕਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ dv k dq ਓਵਰ r। ਹੁਣ dq ਕਿਤੋਂ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਇਹ dq ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਰ ਲੈਮਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, q ਬਣ ਗਿਆ ਲੈਮਡਾ l, ਠੀਕ ਹੈ l ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਲ l ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ l ਬਟਾ r ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ l ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ r ਥੀਟਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ q ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਲੈਮਡਾ r ਥੀਟਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ k, ਇਧਰੋਂ dv ਦਾ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਇਧਰੋਂ dq ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਰੋਮ 0 ਤੋਂ q ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ k q ਓਵਰ r, q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੈਮਡਾ r ਥੀਟਾ ਓਵਰ r ਤਾਂ v ਆ ਜੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ k ਲੈਮਡਾ ਥੀਟਾ। ਆਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ v k q small r। ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ k q कैपिटल r। ਇਨਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ k q r। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਲ ਆ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਐਟ ਸੈਂਟਰ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ 10 ਵੋਲਟ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ 5 ਵੋਲਟ। ਕਹਿੰਦਾ V ऑफ द इनर मेटालिक स्फीयर ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ 10 ਵੋਲਟ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਦਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਫੀਅਰ ਦਾ 5 ਵੋਲਟ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ VC ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 10 ਪਲੱਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ VC ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆ ਆਊਟਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 10 ਪਲੱਸ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ 15 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ इंसुलेटिंग स्फीयर या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर भी कहते हैं। हुण ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਰੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ r ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ b k q r, ਇਹ ਛੋਟਾ r ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜੂਗਾ k q कैपिटल r। ਹੁਣ ਇਨਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਰੇ ਇਨਸਾਈਡ ਅੰਦਰ इस पॉइंट पे होगा b इनसाइड k q upon 2r ਦਾ cube 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r ਦਾ स्क्वायर। अगर ਅਸੀਂ पोटेंशियल एट सेंटर ਕੱਢਣਾ ਹੈ bc ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ स्मॉल r ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 3/2 k q upon r। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हॉलो स्फीयर की गल करते हैं, हॉलो स्फीयर वास्ते जिहड़ा ग्राफ बनूगा वो ये बनूगा। इत्थे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R के उत्ते पोटेंशियल मैक्सिमम है, उरे भी वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। इत्थे तक इनसाइड तो लैके ऑन दी सरफेस तक सेम रहता है, पर जदों तुसीं हॉलो तो कंडक्टिंग स्फीयर के उत्ते शिफ्ट कर दोगे तो उरे कितना होगा k q upon r k q upon कैपिटल R। फिर उस तो बाद ये डिक्रीज करता। पर जे तुसी कंडक्टिंग स्फीयर दी गल सॉलिड स्फीयर दी गल करोगे जेड़ा हुणे आपां कीता है तां इस केस दे विच की होगा आ चीज तो उनी ही है, आउटसाइड भी उतना ही है, ऑन द सरफेस भी उतना ही है, बट इनसाइड द सरफेस कितना होगा ਇੱਥੇ ਇਹ BC होगा और यदि वैल्यू होएगी 3/2 k q by r एट सेंटर 3/2 एक होगा b इनसाइड ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ऑन द सरफेस स्मॉल r, ਇਹ ਹੈਗਾ b वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आउटसाइड पॉइंट, ਇਹ ਹੈਗਾ ऑन द सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ਇਹ ਹੈਗਾ इनसाइड पॉइंट वास्ते। ठीक है, इनसाइड पॉइंट वास्ते एक गल होर भी है जो ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 3/2 k q over r minus 3 k q over 2r ਦਾ cube into r ਦਾ square is equal to b inside। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡਾ y axis, ਇਹ ਹੈਗਾ y0, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ m, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x square, ये बन गया y
इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस एम एक्स का स्क्वायर। आ चीज बन गई। ये जी है पैराबोलिक टाइप शेप ता बनी। लो जी सीगा हॉलो ते ग्राफ। आपने देखना है भी पोटेंशियल एट पी इज 1/4 ऑफ द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मैंने बोली प्रेस कितना है के क्यू ओवर आर। के क्यू ओवर आर पूरे कितना होगा एट पी है के क्यू ओवर आर आर ते एक्स। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ x ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ x ਲੈ ਲਓ तो बन जाएगा 1/4 के क्यू अपॉन आर तो x बन जाएगा इज इक्वल टू 4r। ठीक है ये सीगा ए पार्ट। एक साडे कोले सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर है। एक ही है एक सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर है। इंसुलेटिंग स्फीयर है जिहदे ते चार्ज क्यू है। चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। असि क्वेश्चन सी पोटेंशियल जड़ा P ते है इट इज 1/4 ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस। पोटेंशियल ऑन सरफेस जे क्वेश्चन पेपर च ए आ जाए पोटेंशियल एट P इज 1/4 किदा एट सेंटर। ये सेकंड पार्ट है। पोटेंशियल एट P कितना होगा वही K Q ओवर R R एट सेंटर कितना कटे आपने 3/2 के क्यू अपॉन आर। 3/2 के क्यू अपॉन आर आर रेडियस। हाँ जी ये बन गया के क्यू कैंसल 3/8 तो आर इज इक्वल टू 8r इज इक्वल टू 3x x इज इक्वल टू 8/3r। ठीक है ये सी सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल है कि ओदे उत्ते कितना पोटेंशियल होगा। सीधी गल है के क्यू 1 प्लस 1/2 1 के क्यू बाई आर ਇਹਦੇ ਤੇ 1/2 अगर 1/4 अगे 1/8 सो ऑन ऐ चलता जाऊगा। तो ये तुसीं देखो आ सारी की बन गई जीपीसीडी बन गई के क्यू ओवर आर नीचे ओवर आर 1 माइनस मैं मार्कर चेंज करूँ 1 माइनस 1/2 इनू डिवाइड किया 1/2 आर आ गई कॉमन रेशियो यानी कि v कितना आ गया 2k आंसर 2k। दिस इज पोटेंशियल एट ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रब करने लगे हैं। फाइंड करके एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं। देखो जी आपने फार्मूला पढ़िया के क्यू ओवर आर। ठीक है हुण n ड्रॉपलेट्स मिलके n एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं। n ड्रॉपलेट हरेक का चार्ज क्यू रेडियस n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो ये बन गया के क्यू ओवर आर n की पावर 2/3। 1000 ड्रॉपलेट्स ने हरेक का रेडियस 2/3 है तो ये बन गया 100। ये के क्यू बाई आर आ गया b ये आ गया b डैश। तो नवा जो पोटेंशियल होगा वो 100 टाइम द ओल्ड पोटेंशियल बन जाएगा। एक क्वेश्चन है जो 1000 ड्रॉपलेट रेडियस आर कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉपलेट करते हैं तो बड़े का जो पोटेंशियल हैगा वो छोटे ड्रॉपलेट्स तो 100 टाइम्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉप करने लगे हैं। स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। एक साडे कोले एक होर कंसैंट्रिक स्फीयर्स बना ले ਇਹਦਾ भी रेडियस कैपिटल आर है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਮਾਲ q ਇਹਦੇ ਤੇ q ਮਾਈਨਸ q such that their surface charge densities are equal. Their surface charge densities are equal. Charge densities are equal. ठीक है एक ही हो गया चार्ज अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा 4πr² छोटे का। दूजे का कितना होगा q माइनस q ओवर 4π कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये बन गया q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q ओवर R का स्क्वायर। तो ये बन गया Q कैपिटल R का स्क्वायर ओवर स्मॉल r का स्क्वायर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। कैपिटल Q बन गया Q प्लस Q R का स्क्वायर ओवर स्मॉल r का स्क्वायर। Q बन गया R का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q। ठीक है तो इथों थोड़े को कैपिटल Q की वैल्यू निकली आई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q। ठीक है हुण तुहाडे कोले बड़ा चार्ज कैपिटल Q पता लग गया
स्मॉल क्यूब आर दा स्क्वायर ओवर स्मॉल क्यूब माइनस का क्यूब उधर चला गया, ए प्लस का क्यूब बन गया, क्यूब आर दा स्क्वायर ओवर क्यूब कैपिटल आर दा स्क्वायर ओवर स्मॉल आर। इस तरह ही ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ क्यूब भी कढ़ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, क्यूब माइनस स्मॉल क्यूब बाहरले ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਨਿਕਲੂਗਾ क्यूब स्मॉल आर दा स्क्वायर प्लस कैपिटल आर दा स्क्वायर ओवर स्मॉल आर दा स्क्वायर माइनस स्मॉल आर दा स्क्वायर। ये बन गया क्यूब कैपिटल आर दा स्क्वायर ओवर क्यूब आर स्क्वायर माइनस क्यूब आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये बन गया कैपिटल क्यूब माइनस स्मॉल क्यूब। क्वेश्चन ये है फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द स्फीयर एट द कॉमन सेंटर। ये क्वेश्चन है, इस पॉइंट के उत्ते पोटेंशियल कटना है। इस पॉइंट ते जिहड़ा पोटेंशियल होगा वो इस स्फीयर करके भी होगा ते उस स्फीयर करके भी होगा। के क्यूब स्मॉल आर इत्थे काहदे करके होगा, के कैपिटल क्यूब माइनस स्मॉल क्यूब ओवर कैपिटल आर। स्मॉल आर क्यूब दी वैल्यू इत्थों डायरेक्ट भी कड्ढी सी, उन्नी होई है क्यूब आर दा स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इस करके सानू इस नूं कड्ढण दी कोई लोड़ नहीं सी, सानू बड़ा क्यूब ही ठीक है। हुण असीं की कड्ढनी है, जां तुसीं कैपिटल क्यूब माइनस स्मॉल क्यूब ओही डायरेक्ट भी पुट कर सकदे सीगे। साडे कोले छोटा क्यूब दी वैल्यू दी लोड़ पेगी इहनूं कड्ढण दे लई। हाँ बड़ा क्यूब तो कढ़ लिया, चलो हुण तुसीं की करो, थोड़े कोले कैपिटल क्यूब की वैल्यू तुहानूं पता है आ वाली है, तुहानूं स्मॉल क्यूब डायरेक्ट पता है इन टर्म्स ऑफ दिस, तुसीं ए वैल्यूआं नूं डायरेक्टली इस दे विच सबस्टिट्यूट कर दो, थोड़े कोले पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर निकलेगा। ये तरीका है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है असीं पोटेंशियल कढना एट कॉमन सेंटर, सिंपली वैल्यू पुट करनी है एंड वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट कंसेंट्रिक शेल्स। ये अंदरला शैल है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, इसका रेडियस सी है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ Q1 है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ Q2 है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ Q3 है। ਇਹਦੀ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ਇਹਦੀ माइनस सिग्मा है, ਇਹਦੀ सिग्मा है। ये A है, ये B है, ये C है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ शेल, find potential of shell A, B, C and at center। एक क्वेश्चन ठीक है जी। सब तो पहला देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, हरेक शैल के उत्ते चार्ज दिता भी है, असी पोटेंशियल कढना है A शैल दा, B शैल दा, C शैल दा ते सेंटर दा। A दे उत्ते जिहड़ा पोटेंशियल होगा A दे अपने करके होगा, अपने करके कितना होगा K Q1 ओवर A, B करके होगा, B करके कितना होगा K Q2 ओवर B, C करके होगा K Q2 ओवर C। हुण चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई A का स्क्वायर एक होगा सिग्मा पहले केस च, दूसरे केस च चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई का स्क्वायर पाई B का स्क्वायर, एक Q1 है Q2 है। तीसरे केस सिग्मा Q चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई C का स्क्वायर होगा सिग्मा। इन्होंने पुट किया, ये बन गया K Q1 कितना 4 पाई A का स्क्वायर इनटू सिग्मा बटा A, K 4 पाई सिग्मा A B का स्क्वायर इनटू सिग्मा, ये माइनस साइन है बाहर काट लो बटा B, प्लस K 4 पाई C का स्क्वायर इनटू सिग्मा बटा C। ठीक है जी, 4 पाई के हुंदा है, इहनूं बाहर कढ लो सारे चों, 4 पाई सारे च आ गया, सिग्मा भी सारे च आंदा, इहनूं बाहर कढ लो, 4 पाई ते सिग्मा सारे च, 4 पाई सिग्मा 4 पाई, के भी सारे च, इहनूं बाहर कढ लो। अंदर की रह गया A दा स्क्वायर बाय A, B दा स्क्वायर बाय B, C दा स्क्वायर बाय C। हुण K जिहड़ा हुंदा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे बराबर हुंदा, बन गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C। ये आ गया पोटेंशियल एट A। हुण देखते हैं पोटेंशियल एट B कितना होगा, ये सी A दे उत्ते पोटेंशियल। हुण आपां देखते हैं B दे पोटेंशियल कितना होगा इस दे उत्ते। ये आ गया A माइनस B प्लस C, A माइनस B। चलो जी, हुण असीं B दे उत्ते पोटेंशियल कढना है। B दे उत्ते पोटेंशियल B करके अपने करके है, A करके है और C करके है। इस पॉइंट दे उत्ते जिहड़ा पोटेंशियल होगा A दे करके है, A करके है, C करके भी है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के उत्ते जिहड़ा पोटेंशियल है B दा अपना भी है। तो इस च असीं की करांगे 4 पाई दा स्क्वायर A दा, ये इत्थे B लिखांगे, कुछ नहीं फर्क पैना, बस इन्ना ही फर्क होगा, और B लिखांगे
पूरे 4 पाई का स्केयर सिग्मा ओमी है, 4 पाई का स्केयर सी का स्केयर ओमी है, पूरे ए का स्केयर बटा बी बन जाएगा, पूरे एक बी रह जाएगा, पूरे सी का सी ओमी रह जाएगा, ए का स्केयर बाई बी बन जाएगा माइनस बी प्लस सी बन जाएगा, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, ए बन जाएगा ए का स्केयर माइनस बाई बी माइनस बी प्लस सी, ए आपका पोटेंशियल एट बी, ये बन गया पोटेंशियल एट बी। आओ चलिए ते देखिए सी दे उत्ते कितना पोटेंशियल होएगा। सी दे उत्ते जेड़ा पोटेंशियल होएगा इत्थे ए दे करके भी होएगा, इत्थे सी लिखना पऊगा, फिर बी दे करके भी होएगा सी लिखना पऊगा, इत्थे सी दा अपना होएगा तां उरे की आऊगा 4 पाई दा स्क्वायर ए दा स्क्वायर सिग्मा उरे सी आऊगा, उरे माइन सी आऊगा, उत्थे भी सी आऊगा। हुण ये बन जाएगा ए दा स्क्वायर माइनस बी दा स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, सारे दा बटा ए दा स्क्वायर माइनस बी दा स्क्वायर प्लस सी दा स्क्वायर सारे दा बटा सी, माइनस बी दा स्क्वायर प्लस सी दा स्क्वायर सारे दा बटा सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा सी। ए जेड़ा हुंदा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुंदा है, तां सी पोटेंशियल एट सी जेड़ा होगा वो ए दा स्क्वायर माइनस बी दा स्क्वायर प्लस सी दा स्क्वायर बटा सी आ जाएगा। ये तरीका है। हुण असीं कढना होवे जे पोटेंशियल एट सेंटर, ये पोटेंशियल एट सी सीगा, हुण पोटेंशियल एट सी किवें निकलूगा। हुण देखो सी दे उत्ते पोटेंशियल कढन लगे सानू ए वास्ते भी है, सी ते पोटेंशियल बी करके भी है, सी ते पोटेंशियल इस ए करके है, सी ते पोटेंशियल इहदे करके भी है, सी ते पोटेंशियल वो पहले वाला केस रिपीट हो जाएगा, सारा तरीका उही है। तुसीं किते मर्जी इस तरह करके पोटेंशियल कढ सकते हो। वन मोर न्यूमेरिकल, एयर दीयां सारियां साइडां आपस में बराबर हुंदियां सानू पता है। आ सेंटर है इसका पी, असीं पोटेंशियल एट पी कढना है, ਇਹਦਾ मतलब a/2 ਆਹ ਹੈ, a/2 ਆਹ ਹੈ, a ਆਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਰੇ ਪਲੱਸ q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ q। फाइंड पोटेंशियल एट p, vp ਕੱਢੋ due to all the charges at the corners, due to all the charges at the corners ऑफ स्केयर। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ a प्लस a/2 ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 5/a ਸਕੁਅਰ प्लस 4a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 4, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2a, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 into a, आर दिया उसे into a। तो ये करके पोटेंशियल कितना हो गया, ये हो गया k q प्लस द ओवर a स्क्वायर रूट 5/2a, ये करके कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा k q ओवर स्क्वायर रूट 5/2a, ये करके पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस k q ओवर a/2, ਇਹਦੇ ਦਾ पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस k q ओवर a/2। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 2kq 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 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5a, दोनों च कॉमन ਕੱਢ ਲਓਗੇ 1 + 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਆਈ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ 2 ਔਰ 2 4 k q ओवर स्मॉल a, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੋਂ 4k q ओवर a ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1/√5 - 1, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ पोटेंशियल ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ p ड्यू टू ऑल द चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। क्योंकि उरे जेड़ा पोटेंशियल होगा ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, सिर्फ वैल्यू पुट करनी सी।